चलाएं ऑडियो, सुनो। Hallo zu unserer Sendung zum Thema Schule aus. Und nun? Letzte Woche haben wir Ihnen Schülerinnen und Schüler präsentiert, die erst einmal ein Jahr Pause gemacht haben. Diese Woche erzählen Maike, Vida und Sarah von ihrer Entscheidung. Alle drei haben gleich mit einer Arbeit oder einem Studium begonnen. Maike, du hast eine Ausbildung angefangen, oder? Genau. Ich mache jetzt seit einem Jahr eine Ausbildung als Gärtnerin. Die dauert insgesamt 3 Jahre. Warum hast du dich dafür entschieden? Das hat mehrere Gründe. Erstens wollte ich gern gleich nach der Schule Geld verdienen und allein wohnen. Und zweitens liebe ich die Natur und Blumen und bin gern draußen. Ich muss auch lernen und am Ende eine Prüfung machen, aber das ist schon okay. Was gefällt dir besonders gut? Die Ausbildung ist sehr praktisch. Das ist perfekt für mich. Und du, Sarah? Im FSJ, also dem Freiwilligen Sozialen Jahr, bekommst du auch schon etwas Geld, oder? Ja, aber nur ein bisschen. Und das war nicht der Grund für meine Entscheidung. Ich wollte einfach nicht gleich nach der Schule wieder lernen. Später mache ich dann wahrscheinlich eine Ausbildung oder vielleicht studiere ich. Ich weiß es noch nicht. Ich habe ja jetzt noch ein Jahr Zeit für die Entscheidung. Erzähl uns doch mal kurz, was du so machst. Also, ich mache ein soziales Jahr. Ich betreue Tatjana. Sie ist 12 und sitzt im Rollstuhl. Sie ist witzig und wir verstehen uns gut. Ich bringe sie zur Schule und helfe ihr in der Freizeit. Ihre Eltern arbeiten beide und haben noch einen 5 Jahre alten Sohn. Für mich ist die soziale Arbeit eine tolle Erfahrung. Danke, Sarah. Darüber sprechen wir gleich noch länger. Aber jetzt erstmal zu Vida. Vida, du hast direkt nach der Schule dein Studium begonnen. Jetzt bist du schon seit 2 Jahren an der Uni. Wolltest du keine Pause nach der Schule? Nein, ich habe gleich mit dem Studium angefangen. Also ein paar Monate hatte ich schon Pause. Da war ich mit Freunden in Kroatien. Aber dann bin ich von München nach Leipzig gezogen. Da war für mich alles neu. Nächstes Jahr mache ich ein Auslandssemester in den Niederlanden. Also langweilig ist mir nicht. Das glaube ich. Und was studierst du? Internationales Recht, also Jura. Das klingt für andere vielleicht anstrengend und ich muss wirklich viel lernen, aber für mich ist es perfekt. Meine Eltern unterstützen mich und finanzieren die Wohnung, denn für einen Job habe ich eigentlich keine Zeit. Ihr seid alle drei glücklich mit eurer Wahl. Habt ihr denn Tipps für die Schülerinnen und Schüler, die ebenfalls... हाँ जी, ये वीडा थी, ये जारा और ये माइक है। हाँ जी, इसमें कोई डाउट हो तो बताओ, क्योंकि कीवर्ड्स पकड़ने थे आपने, है ना। इसमें गार्टन अर्बाइटन की बात करी थी इसने, है ना। उसमें ऊनी की बात करी थी, इंटरनेशनल पढ़ रही है कुछ, वो यूरा, यूरा की बात हुई थी। यूरा लॉ, लॉ को बोलते हैं यूरा, है ना। और ये जोसियालिस वर्क की बात हुई थी इसमें, और वो 12 साल की बच्ची है, उसकी वो केयर कर रही है, ऐसा कुछ बोला था उसने, ना। तो ये कीवर्ड्स थे कुछ जो हमें पकड़ने थे। हाँ जी, बताओ, समझ में आया कि नहीं आया? यस सर। नीचे आओ। अब यहाँ पे देखो कुछ स्टेटमेंट्स लिखे हुए हैं, माइके, जारा और वीडा का। बताओ इसमें से कौन से स्टेटमेंट रिस्टिश है, कौन से फॉल्स है। कोशिश करो। Seit einem Jahr bin ich mit der Schule fertig। ऐसा बोला था कि उसने 1 साल में खत्म कर देगी स्कूल को। नो, ऑडियो चलाओ एक बार और, सुनना पड़ेगा ऑडियो एक बार और, फिर सुनो, है ना। Hallo zu unserer Sendung zum Thema Schule aus. Und nun? Letzte Woche haben wir Ihnen Schülerinnen und Schüler präsentiert, die erst einmal ein Jahr Pause gemacht haben. Diese Woche erzählen Maike, Vida und Sarah von ihrer Entscheidung. Alle drei haben gleich mit einer Arbeit oder einem Studium begonnen. Maike, du hast eine Ausbildung angefangen, oder? Genau. Ich mache jetzt seit einem Jahr eine Ausbildung als Gärtnerin. Die dauert insgesamt 3 Jahre. Warum hast du dich dafür entschieden? Das hat mehrere Gründe. Erstens wollte ich gern gleich nach der Schule Geld verdienen und allein wohnen.
Und zweitens liebe ich die Natur und Blumen und bin gern draußen. Ich muss auch lernen und am Ende eine Prüfung machen, aber das ist schon okay. Was gefällt dir besonders gut? Die Ausbildung ist sehr praktisch. Das ist perfekt für mich. Und du, Sarah? Im FSJ, also dem Freiwilligen Sozialen Jahr, bekommst du auch schon etwas Geld, oder? Ja, aber nur ein bisschen. Und das war nicht der Grund für meine Entscheidung. Ich wollte einfach nicht gleich nach der Schule wieder lernen. Später mache ich dann wahrscheinlich eine Ausbildung oder vielleicht studiere ich. Ich weiß es noch nicht. Ich habe ja jetzt noch ein Jahr Zeit für die Entscheidung. Erzähl uns doch mal kurz, was du so machst. Also, ich mache ein soziales Jahr. Ich betreue Tatjana. Sie ist 12 und sitzt im Rollstuhl. Sie ist witzig und wir verstehen uns gut. Ich bringe sie zur Schule und helfe ihr in der Freizeit. Ihre Eltern arbeiten beide und haben noch einen 5 Jahre alten Sohn. Für mich ist die soziale Arbeit eine tolle Erfahrung. Danke, Sarah. Darüber sprechen wir gleich noch länger. Aber jetzt erstmal zu Vida. Vida, du hast direkt nach der Schule dein Studium begonnen. Jetzt bist du schon seit 2 Jahren an der Uni. Wolltest du keine Pause nach der Schule? Nein, ich habe gleich mit dem Studium angefangen. Also, ein paar Monate hatte ich schon Pause. Da war ich mit Freunden in Kroatien. Aber dann bin ich von München nach Leipzig gezogen. Da war für mich alles neu. Nächstes Jahr mache ich ein Auslandssemester in den Niederlanden. Also langweilig ist mir nicht. Das glaube ich. Und was studierst du? Internationales Recht, also Jura. Das klingt für andere vielleicht anstrengend und ich muss wirklich viel lernen, aber für mich ist es perfekt. Meine Eltern unterstützen mich und finanzieren die Wohnung, denn für einen Job habe ich eigentlich keine Zeit. Ihr seid alle 3 glücklich mit eurer Wahl. Habt ihr denn Tipps für die Schülerinnen und Schüler? अब बताओ क्या richtig falsch है? Seit einem Jahr bin ich mit der Schule fertig. नहीं, शायद 3 Jahre बोला था उसने ना. ये falsch Yes, है. sir. और nach der Schule wollte ich weiter bei meinen Eltern wohnen. बताओ. स्कूल के बाद वो अपने माता पिता के पास रहना चाहती थी क्या? False. false है रिश्ते में. false है. False. फर्स्ट रिश्ते से भाई स्कूल से फिनिश हो जाएगी, लेकिन जो हाउस बिल्डिंग है वो 3 साल चलेगी, ऐसा बोला था उसने. देखो इसकी टास्क दिखाता हूँ आपको, एक सेकंड. ये देखो, ये रहा यहाँ पे, ये रहा देखो. Ich mache jetzt seit einem Jahr eine Ausbildung als Gärtnerin, die dauert insgesamt 3 Jahre. ये तो Ausbildung की बात करी है ना, स्कूल की बात करी. देखो, alle 3 haben gleich mit einer Arbeit oder ein Studium begonnen. Maike, du hast eine Ausbildung angefangen. Okay, ये कह रहा है कि nach der Schule verdiene. ये रहा. Das hat mehrere Gründe. Erstens wollte ich gern gleich nach der Schule Geld verdienen, allein wohnen. Und zweitens liebe ich die Natur und Blumen und bin gern draußen. Ich muss auch lernen und am Ende eine Prüfung machen. Das ist schon okay. Was gefällt dir besonders? Die Praktikum, sehr praktisch. Das ist praktisch für mich. Und Sarah, इसमें कहाँ बात हुई है? देखो ये रहा. Hallo zu unserer Sendung zu Thema Schule. Letzte Woche haben wir 3 Schülerinnen und Schüler präsentiert, die erst einmal ein Jahr Pause gemacht haben. Diese Woche erzählen Maike, Vida und Sarah vor ihrer Entscheidung. Alle 3 haben gleich mit der Arbeit oder einem Studium begonnen. Maike, du hast eine Ausbildung angefangen, oder? Ich mache jetzt seit einem Jahr eine Ausbildung als Gärtnerin, die dauert insgesamt 3 Jahre. Warum hast du das? इसमें क्वेश्चन क्या था अपना? Seit einem Jahr bin ich mit der Schule fertig. Richtig oder falsch था ये? Richtig. Second वाला falsch. अरे कहाँ falsch है भाई? लेकिन ये बात कहाँ हुई इसमें कि स्कूल के बाद, देखो इसने बोला तो नहीं बोला, तभी तो गलत है. नहीं बोला ना. ओ देखो ये रहा.
एस einmal ein Jahr Pause gemacht haben, एक साल का ब्रेक लिया, तो यानी कि एक साल में स्कूल खत्म हो जाएगा ना उनका, ये कहना मतलब है, इसलिए आया है ना। ओके, सेकंड देखो, ich wollte eine Pause vom Lernen haben, इसका आंसर क्या था? ठीक है, ich helfe eine Familie mit einem Kind, नहीं, दो बच्चे थे उनके, एक लड़की थी और एक लड़का था, इसलिए गलत है ये, है ना। देखो यहाँ पे आया ये, देखो ये रहा, देखो ये रहा, ich mache ein soziales Jahr, ich betreue Tania, sie ist 12 und sie ist im Rollstuhl, Rollstuhl समझ गए, वो हैंडीकैप वाला जो वो होती है ना, पहिए लगे होते हैं इसमें, इसको कुर्सी टाइप जो होता है लेकिन मूव होता है, इसमें मोटर भी आती है। वो काल देखा था, काल, काल, काल ने, शाकाल क्या नाम था उसका? नहीं, वो मूवी नहीं थी उसकी, ऋतिक रोशन वाली, क्रिश। क्रिश में बेबी कोबरा नहीं था, किस पे आता था वो ये रोल स्टूडी तो है वो क्या नाम था उसका? काल, हाँ, वो रोल स्टूल ही है भाई, है ना। तो कुछ मतलब वो हाईटेक आते हैं, तो वो उसमें मोटर लगी होती है, चार्ज हो जाती है, शायद बैटरी होती है उसमें, और उससे आप मूव कर सकते हो घर में इधर उधर ना, ये रहता है। तो कहां पे थे अपन लोग, देखो ये रहा, ये रहा, देखो, ihr Eltern arbeiten beiden haben noch einen 5 Jahre alten Sohn, बेटा भी है उनके, तो वहां उनके एक ही बच्चा नहीं है, दो है, तो इसलिए गलत है ना। और vor 2 Jahren habe ich meinen Job angefangen, 2 साल पहले उसने जॉब स्टार्ट करी क्या? नहीं, गलत है ये तो, शायद पढ़ाई स्टार्ट करी है उसने, तो फालसा देखो। और देखो, मायने एल्टन सालन मायने मीटर, मेरे माता पिता मेरा रेंट पे कर रहे हैं क्या? यस, देखो रीड करते हैं, ये रहा यहाँ पर, देखो ये रहा, ich habe gleich mit dem Studium angefangen, और यहाँ पे क्वेश्चन क्या है देखो, जॉब, जॉब की बात, जॉब की बात तो हो ही नहीं रही कहीं पे, है ना। तो ये देखो यहाँ पे, mit dem Studium angefangen, also ein paar Monate hatte ich schon Pause, da war ich mit Freunden in Kroatien, aber dann bin ich von München nach Leipzig gezogen। ein paar Monate, कुछ मंथ्स का ब्रेक लिया है, घूमने गई होगी, जॉब की बात नहीं हुई है कहीं पे, इसलिए गलत है ना। ein paar Monate मतलब कुछ मंथ्स, ए पेयर ऑफ मंथ्स, कुछ महीने ऐसे बोला जाएगा इसको ना। ein, कई बार बोलते हैं ein paar Leute, कुछ लोग, कुछ लोगों का समूह, ऐसे बोला जाता है। और देखो, इंटरनेशनल रेस्ट मतलब इंटरनेशनल लॉ पढ़ रही है ये, आल्सो यूरा, लॉ को क्या बोलते हैं? यूरा बोलते हैं। और देखो ये रहा, meine Eltern unterstützen mich und finanzieren die Wohnung, आ गया ना, मेरे माता पिता अपार्टमेंट के लिए फाइनेंस करते हैं, तो मतलब रेंट पे कौन कर रहा है? माता पिता कर रहे हैं ना भाई, इसका मतलब ये हुआ। तो ये देखो, रिश्टिश, यहां तक कोई दिक्कत हो बताओ किसी तरह की? चले आगे, Yes, sir. नीचे आ जाओ भाई, भरो इनको, नॉमिनेटिव, अक्यूजेटिव और डाटिव, से में आया है, 7 से कौन सा है? ये रहा, ये वाला, इसमें देखो आया ना, डाट प्रीपोजिशन आ गया आपके। देखो नॉमिनेटिव में क्या होता है? देयर, न्यूट्रल में दास, और फेमिनिन में डी, और ये प्लूरल हो गया आपका ना। तो देयर का अक्यूजेटिव होता है देन, डाटिव हो जाता है देम। ऐसे आइन का देखो, आइन का अक्यूजेटिव हो जाता है आइनन, और डाटिव हो जाएगा आइनम। ऐसे ही माइन का माइनन, और डाटिव हो जाएगा माइनम। लिखो, आगे देखो, न्यूट्रल में दास, दास का दास ही रहता है, और डाटे में क्या हो जाता है? देम। आइन का आइन ही रहता है, लेकिन डाटे में क्या हो जाएगा? आइनम। ऐसे ही माइन का माइन ही रहता है, और डाटे में क्या हो जाएगा? माइनम। ऐसे फेमिनिन देखो, डी, डी का डी ही रहता है, और डाटे में क्या हो जाएगा? सॉरी, देयर, नहीं नहीं नहीं, गलती हुई है, एक मिनट को,
देखो डी का डी ही रहता है, लेकिन डाटे में हो जाएगा देयर। आईने का आईने ही रहेगा, लेकिन डाटे में क्या हो जाएगा, आइनर। ऐसे ही मायने का मायने ही रहेगा अक्यूजेटिव में, और डाटे में क्या हो जाएगा, माइनर। और प्लूरल में देखो डी का डी रहता है अक्यूजेटिव में, और वहां पे क्या हो जाएगा, देन प्लस एन, देन प्लस एन, राइट। और आईने का प्लूरल नहीं होता है, राइट, आइन का प्लूरल नहीं होता है, तो ये डेफ लगा हुआ है। अब चलते हैं माइन की तरफ। तो प्लूरल में माइन है, अक्यूजेटिव में माइन है, और डाटिव में माइनन। देखो माइनन। यहां तक कोई दिक्कत हो तो बताओ। हाँ जी, रोहिणी, श्रद्धा, प्रमोद, प्रभजोत, निपुण, बताओ। नहीं नो सर। नो नो ना, सर। चलो आगे चलते हैं फिर। नीचे आ जाओ, देखो मिट वेम गेज टू इंस्किनो। मिट मिट क्या है आपका, डाटिव प्रीपोजिशन है, और वेम क्या है आपका, डाटिव डब्ल्यू एच वर्ड है। जब क्योंकि मिट आ गया तो डाटिव से ही बनेगा, यहाँ पे डब्ल्यू एच वर्ड आपको डाटिव भी लिखना पड़ेगा, क्योंकि वेव नॉमिनेटिव में क्या होता है, वेयर, अक्यूजेटिव क्या होता है, वेन, और डाटिव क्या हो जाता है, वेम। तो मिट आ गया तो आपको डब्ल्यू एच वर्ड डाटिव ही यूज करना पड़ेगा, तो वेयर का वेम हो जाता है। मिट वेम मतलब किसके साथ, मिट वेम गिस डू इन स्कीनो। तो आंसर क्या दोगे, मिट माइनर फ्रोइंडन। ओके, मिट माइनन फ्रोइंडन, चाहो तो आप ऐसे भी लिख सकते हो, मिट माइनम फ्रोइंड, मिट माइनन फ्रोइंडन, प्लूरल में देखो फ्रोइंडन, या मिट माइनर फैमिलियर। खूब सारे ऑप्शन हो सकते हैं आपके मिट के साथ ना। मिट वेम गेट एर, एर गेट पूरा आंसर क्या देंगे, एर गेट मिट जाइनर फ्रेंड। जाइन क्यों हुआ है, क्योंकि एर का पॉजिटिव क्या होता है, जाइन होता है, तो इसलिए जाइनर हो गया। और ई आर क्यों आ रहा है, फ्रेंडन की वजह से आ रहा है, कि फ्रेंडन फेमिनिन होती है। क्लियर, ये चीज समझ में आई कि नहीं आई, या मैं क्वेश्चन करूं आप लोगों से। श्रद्धा कितनी देर में जा रहे हो, श्रद्धा कितनी देर में जा रहे हो, निकल गए। प्रभजोत बताओ, मिट वेम लेंस डू डॉइच। मिट वेम लेंस डू, मिट वेम लेंस डू डॉइच, बताओ भाई। प्रभजोत, यस सर। मिट वेम लेंस डू डॉइच, आंसर क्या दोगे। मिट वेम लेंस टू, देखो अगर ये चीज नहीं, हाँ बोलो। नहीं सर कुछ। हम्म, बोलो। मिट वेम लेंस टू डॉइच, रोहिणी, मिट वेम लेंस टू डॉइच। डॉक्टर साहब, मिट वेम लेंस टू डॉइच। सर सर इसमें ऐसा जाएगा, इश लेंस टू डॉइच मिट। इस लर्ने होगा ना भाई, इश लर्ने, हाँ इश लर्ने। बात नहीं भाई, इस लर्ने डॉइच। मिट वेम का जवाब क्या दोगे, ये बताओ। इश लर्ने डॉइच मिट प्रभजोत या किसी किसी। या मिट प्रभजोत, मिट माइनन फ्रेंडन, मिट मिट माइनर माइनर। फ्रेंडन, इस तरह से। प्रभजोत जवाब नहीं दे पा रहे हो, क्या चक्कर है। सर वेम का ही जवाब नहीं आया, अभी मैं मतलब क्या बोलूं आगे। बस समझाया तो था भी, मिट वेम का इतने सारे ऑप्शन दिए आपको मिट के साथ, देखो।
ओके, मिट वेम स्पीच डू jeden Tag बनाओ, मिट वेम स्पीच डू jeden Tag। हाँ भाई प्रभजोत अब बोलो, मिट वेम स्पीच डू jeden Tag, बोलो, काम नहीं चलेगा बिना बोले। हाँ जी चौधरी साहब बताओ, मिट वेम स्पीच डू jeden Tag। किसके साथ बात करते हो रोजाना? Ich spreche jeden Tag mit meiner Freundin. mit meiner Freundin, Meiner Freundin. mit हाँ meiner Freundin, mit meinen Eltern, mit meinen Freunden, mit meiner Freundin, mit meinen Verwandten, mit meinem Nachbarn। कितने सारे ऑप्शन हो सकते हैं भाई? देखो आप ये जवाब नहीं दे पाओगे तो कैसे बोलोगे मुझे बताओ आप, क्यों भाई मित्रों, स्पीकिंग कैसे करोगे बताओ मेरे को आप छोटी छोटी सर बातें बोलते नहीं है, बड़ी दिक्कत वाली बात है, आप चुप लगा जाते हो, ये इंटरनेट पे ये दिक्कत है, ऑनलाइन की सबसे बड़ी समस्या क्या ही है ना? ना तो आप लोग कैमरे पे आते हो, इतनी निवेदन कर लिया, रिक्वेस्ट कर ली मैंने आप लोगों से, ना आप लोग बोलते हो, माइक बंद करके बैठ जाते हो। जब तक कम्युनिकेशन नहीं होगा स्पीकिंग नहीं आएगी भाई, सीधी सी बात है। कितनी बुक कर लो, नाम की ये कोर्स होते रहेंगे, कोई मतलब नहीं है उनका, फिर आप पार्टिसिपेट ही नहीं करते हो, कोई चीज पता नहीं गलती हो जाएगी, पता नहीं क्या हो जाएगा, सूली पे चढ़ा देंगे आप लोगों को, ऐसे ऐसे बिहेव करते हो आप लोग। हाँ जी वो क्या बोल रहे हो डॉक्टर साहब बताओ, कुछ कहना चाह रहे थे? सर मैं बोल रही थी कि मैं जान हम्म, हेलो बोलो। हेलो हाँ बोलो। सर आवाज आ रही है मेरी? आ रही है। सर मैं बोल रही थी कि मेरे को जाना पड़ेगा। ओके ओके, सर मुझे देखो, जाना पड़ेगा। हाँ रिकॉर्डिंग देख लेना, ठीक है। हाँ जी सर। हाँ जी आगे चलो, मिट वेम, मिट वेम ट्रिंक्स टू टे। हाँ जी श्रीमान, मिट वेम ट्रिंक्स टू टे। टे mit meinen Freunden, mit meinen Freunden, Freunde नहीं भाई, एन देन प्लस एन, माइनन प्लस एन लगाते हैं मेरे भाई, मिट माइनर फ्रेंडन। हाँ जी फ्रेंडे बोल रहा है तू, लेकिन अभी फ्रेंडे बोल रहा था ये। हाँ कि जी वो काटना पड़ेगा ब्लेड से ना। ओके हाँ भाई, मिट वेम मार्क्स डू पिकनिक, मिट वेम मार्क्स डू आइनन पिकनिक। हाँ रुक, हाँ हाँ बे कहाँ से आ गया? हाँ अच्छा, या बेटे लास्ट में लगेगा ऑप्शन, जगह नहीं है वहां पे, कहाँ लगाया था? लास्ट में आया था, सब पहले WH वर्ड आएगा, फिर वर्ब आएगी, फिर सब्जेक्ट आएगा, फिर वो लगाया था भाई, सब्जेक्ट से पहले नहीं आ सकता। हाँ जी यहाँ समझ में आया? आ, हाँ फ्रेंडन, 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 ओके ओके। मिट, हाँ जी राव साहब, मिट वेम, मिट वेम गेस टू इंस्किनो, मिट मिट माइनम फ्रेंड, अच्छा मिट माइनम फ्रेंड,
मिट माइनन फ्रेंडन प्लूरल में, मिट माइनन, माइनन आएगा भाई प्लूरल में, फ्रेंड एन लगेगा, दे एन ऐड होगा उसके साथ ना, फ्रेंडन। देखो मिट माइनन फ्रेंडन ऐसा। हाँ जी सरकार, अगर एन नहीं लगाया तो ग्रामेटिक मिस्टेक है वो, ठीक है। हाँ जी, 5 क्वेश्चन बनाओ मिड वेम से जल्दी से और उनके आंसर। 5 मिनट है आपके पास, हर आदमी 5 क्वेश्चन बनाएगा और आंसर देगा। वी हैव 5 मिनट्स, ओके, बनाइए। प्रमोद मेरे दोस्त, इस बिश्नोई जी से क्वेश्चन करो आप। बिश्नोई जी दिख रहे हैं? हाथ खड़े करो बिश्नोई जी एक बार सामने। इश्विन बिश्नोई, इश्विन बिश्नोई, इश्विन मोहित। हाँ जी Yes, सर, क्वेश्चन mit, करिए इनसे प्लीज। yes, sir. Mit wem spielst du jeden Tag? Mit wem spielst du jeden Tag? Mit wem spielst du jeden Tag? Ich spiele mit meinem Freund. Mike did this, sir. Bitte? Mein Freund. क्या कब याद करेगा इनको, कब याद करेगा? मिट माइनम फ्रेंड, मिट माइनन फ्रेंडन। राव साहब ने वही गलती कर रखी है, माइनन लिखा हुआ है और फ्रेंडन में एन नहीं लगाया है ना। देखो ये देख, माइनन फ्रेंडे कैसे हो गया ये? दोस्त मेल है ये, तो फिर ई कहाँ से आ गया मेल में? हाँ फ्रेंड के पीछे आई है लग जाते हैं। हाँ जी, सीधा फ्रेंड मेल है हाँ जी, और फ्रेंडन नहीं है, फ्रेंडिनन वो सहेलियां, फीमेल फ्रेंड्स और बॉयफ्रेंड है। बॉयफ्रेंड क्या होता है? फ्रेंड हो गया, फ्रेंड ही होता है जो भी होता है। फ्रेंडिनन नहीं होता। कहना क्या चाह रहा है तू? लड़की का तो होगा ही। कहना क्या चाह रहा है चाचा, ये बता। फ्रेंड तो हो गया दोस्त, दोस्त, हाँ, अब सहेली का हो गया फ्रेंडिन। फ्रेंडन। अब क्या चाह रहा है? महिला में तो फ्रेंडिन हो गया, फिर फ्रेंडिनन हो गया प्लूरल, हाँ सहेलियां, सहेलियां। हाँ, और इसका प्लूरल हो गया फ्रेंड। फ्रेंडिन, हाँ, यही तो पूछ रहा सर, इसने गलत बताया। अब मैं क्या करूं इसमें सही? हाँ जी, तो इनका आंसर है भाई, Ich spiele jeden Tag mit meinen Freunden, या mit meinen आएगा, Freunden। इन पे कुछ काम करो, काम नहीं चलेगा नहीं तो, है ना। हाँ जी, एकता उनसे पूछो, प्रभजोत से क्वेश्चन कोई भी। प्रभजोत रेडी? Yes, sir. कोई बात नहीं, बात नहीं। Mit wem sprachst du Deutsch? Mit wem sprachst du Deutsch? ये कौन सी जर्मन है भाई? स्प्राक्स कौन सी वर्ब है? एक्सप्रेशन होती है, तो एक्सप्रेशन तो इरेगुलर वर्ब है, स्पीस्ट हो जाएगा। स्पीस्ट, SPRICHST, सही करो उसको। Mit wem sprichst du? Mit wem sprichst du Deutsch? हाँ भाई बताओ, mit wem sprichst du Deutsch? Mit wem sprichst du Deutsch? प्रभजोत जवाब दो। Ich sprichst mit them, mit mein. अरे भाई, ich spreche कॉन्जुगेट नहीं करोगे क्या वर्ब को? A2 में आ गए हो, ये समस्या कब ठीक होगी तुम्हारी, ये बताओ मुझे। क्या भाई? Ich spreche, Ich spreche meine Freundin. अरे मिट कौन लगाएगा दीदी? Mit meinen Freunden. Ich spreche और Deutsch तो बोला ही नहीं, भूल गए। Ich spreche Deutsch। तुम्हारी वो सिस्टर का क्या नाम है जो जर्मन सीख रही है? दिलप्रीत। Dil हाँ, तो ich spreche Deutsch mit
दिलप्रीत। मिट माइनर स्वेस्टर ऐसे कर दो, मिट माइनर, मिट माइनर स्वेस्टर, मिट माइनर स्वेस्टर, दिलप्रीत ऐसे बोलना पड़ेगा, है ना? हाँ जी रोहिणी जी, आर यू हियर? यस सर। राव साहब से क्वेश्चन करना है आपको। मिस्टर राव उधर हाथ खड़ा करो, दिख रहे हैं आपको? यस सर। हाँ जी पूछो इनसे। Mit wem gehst du einkaufen? या mit wem gehst du einkaufen? बताओ भाई, बहुत बढ़िया। किसके साथ शॉपिंग पे जाते हो भाई? समझ गए ना? mit wem gehst du einkaufen बनाओ। mit meiner Freundin, mit meinen Freunden, mit meinem Freund, mit meinen Eltern, खूब सारे आंसर हो सकते हैं, है ना? बहुत बढ़िया। अब पारिक जी आप क्वेश्चन करो निपुण से। निपुण मेरे दोस्त। यस सर। पूछेगा जवाब आप दोगे, है ना? माइक दे दो उनको, माइक। सर Mit lernst du fahren das Auto? क्या? मिट Mit lernst मिट वेम कहाँ गया? क्या? अच्छा mit sorry. Mit wem lernst du fahren das Auto? है? कहना क्या चाह रहा है? सर कहना तो है चाह रहा हूँ। क्या कहना चाह रहा है? हिंदी बता दे, एक बार इंग्लिश बता दे, क्यों भाई हम समझ नहीं पा रहे आपको क्या कहना चाह रहे कि तुमने कार चलाने की सीखी। हैं? कार चलाने किसके साथ सीखी? किसके साथ कार चलाते हो? किसके साथ सीखी? मिट वेम सीखी, फिर वो परफेक्ट हो गया भाई, फिर परफेक्ट में बनेगा वो। सर एक मिनट सही कर। मिट वेम हास दू आउट फारन गेलर्न, ये आएगा फिर उसका, है ना? कार चलाना किसके साथ सीखा, परफेक्ट में बनेगा। या फिर बोलो मिट वेम लेंस डू आउट फारन, ये बनेगा फिर मिट वेम लेंस डू आउट फारन। मिट वेम लास्ट टू डॉइच, वो तो गया, ये कितनी बार बोलेगा क्वेश्चन? तो ये तो बोल ही दिया, इसमें कौन सा तूने तीर चला दिए ये सही है मतलब? सही है ना ये? हाँ सही है। तो ये आ गया ना, क्वेश्चन आ ही चुका है पहले, ये तो इसमें नया क्या है? हाँ भाई निपुण, मिट वेम लेंस टू आउट ऑफ फारन, बताओ भाई। सर लेंथ वो लिख देंगे कि सर आप वर्ब? लिखना नहीं है, बोलना है सर, बोलने का काम है, लिखने का नहीं है। मिट क्वेश्चन वेम रिपीट करना। लेंस डू आउट ऑफ फारन, मिट वेम लेंस डू आउट ऑफ फारन। तुम्हारा अब ना सैटरडे को स्पीकिंग करानी पड़ेगी, नहीं तोते उड़े पड़े, कोई मतलब नहीं है बुक करने का। सेंटेंस नहीं बन रहे तुम लोगों से, इस क्यों? बोलो सर। इस लेंथ से आउट ऑफ फारन। लेंस से कहां से आ गया है? क्या लेंस से क्या है भाई? निपुण भैया कॉन्जुगेशन नहीं आ रहा आपको लर्नन का? सर लर्न है? हाँ इस लर्न आउट ऑफ फारन मिट माइनम फ्रेंडम। मिट माइनम फ्रेंड, यस सर। फ्रेंड नहीं आएगा, ये बीमारी आ गई है राव साहब से आपको ये लगाने की ना। भाई काम करो, बहुत भाई सब विकट स्थिति खराब तुम लोगों की। बेस पे आप लोग काम ही नहीं कर रहे हो, कॉन्जुगेशन में आपको प्रॉब्लम हो रही है, वर्ब में डू के साथ क्या लगा रहे हो, इर्रेगुलर वर्ब का पता ही चल रहा, इसके साथ कॉन्जुगेशन नहीं आ रहा, कॉन्जुगेशन काम ही नहीं कर रहे हो आप लोग, कैसे काम चलेगा बताओ? क्यों जी? दिस इज वेरी वेरी सीरियस है। रेगुलर ये सर लेने तो सर लिखने से कुछ नहीं होगा, व्यवहार में लाओ इनको, प्रैक्टिकल सेंटेंस। आप उससे पूछो ना सेंटेंस बना के, आप लोग करते नहीं हो मेहनत, बस पढ़े गायब। क्यों जी? घर पे किताब उठानी नहीं है, कैसे काम चलेगा भाई? मेरी बात सुनो, कल राउंड दोबारा होगा और कल रैपिड फायर होगा,
रैपिड फायर समझते हो? इंस्टेंट, कोई समय नहीं मिलेगा आपको। स्पोंटान उसको बोलते हैं, एक दूसरा वर्ड है इसके लिए, स्पोंटान। कौन सा वो वर्ड है? स्पोंटान। देखो ये वर्ड है स्पोंटान, जर्मन में बोलते हैं स्पोंटान, स्पोंटेनियस मतलब तुरंत, बिना समय दिए। कल वापस बात करेंगे मिडवेम से, ठीक है? सेंटेंस क्वेश्चन बना हुआ जितने बना सकते हो। मिडवेम इज दू, मिडवेम गेस दू, मिडवेम लेंस दू डॉइच, मिडवेम ट्रिस्ट दू, मिडवेम स्पीच दू, मिडवेम रेडिस दू, मिडवेम टेलीफोनियस दू। इस तरह से सेंटेंस बनाओ। कैसे नहीं होगी मास्टरी बताओ भाई? मिडवे में आपका WH वर्ड हो गया, उसके बाद वर्ब आएगी, ध्यान रखो। समझे कि नहीं समझे दोस्तों? यस Yes, सर। sir. ये मुद्दे की बात। अब कल आगे चलेंगे फिर, है ना? थोड़ा सा काम करो इस पे, ये कल चैप्टर खत्म हो जाएगा, क्योंकि दो आगे के 2 पेज हम कर चुके हैं ऑलरेडी इसके ना। इधर देखो, कल सिर्फ आपका 1 पेज बचा है इसका, चेक करो, सिर्फ 1 पेज बचा है। 2 पेज ऑलरेडी कर चुके हैं हम इसके। तो कल रेड मेटल भी आ रही है। क्या हुआ? कौन सा क्वेश्चन? हाँ जी, तो कल ये खत्म करेंगे। थोड़ी रेड मेटल आएगी, नई चीजें बोलना सीखेंगे, कल चैप्टर खत्म हो जाएगा आपका। और कल मिडवेम पे काम होगा वापस से, है ना? तो क्वेश्चन तैयार करके आना आप। मिडवेम, मिडवेम देखो, मिडवेम यूज द म्यूजिक, मिडवेम मास्टर द म्यूजिक, म्यूजिक कंपोज करना, किसके साथ गाना सुनते हो? मिडवेम जीस दो फिल्म है, किसके साथ फिल्म देखते हो? हजारों क्वेश्चन बन सकते हैं मिडवेम के साथ ना। तो इस पे काम करके आओ, कल बात करेंगे डिटेल में, ठीक है? और कल ये चैप्टर आपका खत्म हो जाएगा सक्सेसफुली, राइट? ओके, और जैसे सेकंड चैप्टर खत्म होगा, दोनों चैप्टर चेक कराओगे आप लोग को? यस सर। हाँ जी। और हाँ जी, अब हर चैप्टर के बाद टेस्ट भी होगा आपका, पहले की तरह, ठीक है? और टेस्ट कब देंगे अपन, ये देखते हैं, वो तो करते हैं डिसाइड। कहूट भी खेला करेंगे, कहूट हर चैप्टर के बाद। जी सर, है ना? तो अब थोड़ा एक्टिव करेंगे क्लासरूम, कैसा काम नहीं चलेगा ना, राइट? है? हाँ, डंडा भी रखना पड़ेगा ना, डंडा। हाँ, चलो कल मिलते हैं आपसे। प्लीज मिडवेम पे काम करके लाओ कल, है ना? और अच्छे से करो इसको, जिससे आपको क्वेश्चन बनाना और आंसर देना आ जाएगा आसानी से, है ना? ठीक है, आओ विराजेन, चाओ चाओ, बाय बाय। Ciao, ciao.